کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کی بڑی بڑی تبدیلیوں کے انتظار میں وہ قیمتی لمحے گوا دیتا ہے جو دراصل اس کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کوئی بڑا معجزہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کامیابی ایک ہی رات میں ہمارے قدم چوم لے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہاڑ ایک ہی دن میں سر نہیں ہوتے، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو شاید کسی کو نظر بھی نہیں آتے۔ ایک عام انسان جو روزانہ ایک ہی تھکن اور وہی پرانی ناکامیوں کے ساتھ گھر لوٹتا ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا میری محنت رائیگان جا رہی ہے؟ مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک ننھا سا بیج جب زمین کی گہرائی میں دب جاتا ہے تو کئی دنوں تک باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اندر ہی اندر ایک زندگی جنم لے رہی ہوتی ہے؟ یہ کہانی کسی جادو کی نہیں، بلکہ ان ایٹمی ذرات جیسی چھوٹی عادات کی ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہیں، لیکن جب جڑتی ہیں تو ایک پوری کائنات تخلیق کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بولتی بک، اور آج کی کتاب ہے ایٹامک ہیبٹس بائی جیمز کلیئر۔ زندگی کے اس سفر میں ہم سب مسافر ہیں، اور ہر مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے، لیکن اکثر ہم راستوں کی دھول میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ منزل تک پہنچنے کے لیے دوڑنا ضروری نہیں، بلکہ صحیح سمت میں ایک چھوٹا سا قدم اٹھانا کافی ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فوری نتیجہ چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج ورزش شروع کریں تو کل آئینہ ہمیں ایک بدلا ہوا انسان دکھائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج بچت شروع کریں تو پرسوں ہم امیر ہو جائیں۔ لیکن قدرت کا نظام بڑا صابر اور گہرا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تبدیلی خاموشی سے آتی ہے۔ جیمز کلیئر ہمیں اسی خاموش تبدیلی کی طاقت سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ صرف 1% خود کو بہتر کر لیں تو سال کے آخر میں آپ وہ انسان نہیں رہیں گے جو آپ آج ہیں۔ تصور کریں ایک ایسے شخص کا جو برسوں سے ایک ہی روٹین میں قید ہے، جس کے خواب تو بڑے ہیں مگر حوصلہ پست۔ اسے لگتا ہے کہ شاید قسمت اس سے روٹھی ہوئی ہے، مگر اصل راز قسمت میں نہیں بلکہ ان معمولی فیصلوں میں چھپا ہے جو ہم ہر صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس ہوائی جہاز کے بارے میں سوچا ہے جو اپنی پرواز شروع کرتے وقت اگر اپنا رخ صرف 1 ڈگری موڑ لے تو وہ اپنی منزل سے سینکڑوں میل دور کسی انجان شہر میں جا اترتا ہے؟ ہماری زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ ایک چھوٹی سی اچھی عادت ہمیں کامیابی کے روشن ساحل پر اتار سکتی ہے، اور ایک معمولی سی کوتاہی ہمیں ناکامیوں کے اندھیروں میں دھکیل سکتی ہے۔ آج ہم اس گفتگو میں ان 5 بنیادی اسباق کو سمجھیں گے جو آپ کی زندگی کے الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھا سکتے ہیں اور آپ کو ایک ایسی شخصیت میں ڈھال سکتے ہیں جس کا آپ نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ میں بدلنا تو چاہتا ہوں پر بدل نہیں پاتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ میں ہمت نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آپ غلط چیز کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم عام طور پر اپنے نتائج کو بدلنا چاہتے ہیں، جیسے کہ مجھے وزن کم کرنا ہے یا مجھے بہت سے پیسے کمانے ہیں، لیکن نتائج تو صرف ایک پھل ہیں۔ اصل کام تو اس جڑ پر کرنا ہے جہاں سے یہ پھل نکل رہا ہے۔ سچی تبدیلی تب آتی ہے جب آپ اپنی شناخت کو بدلتے ہیں۔ جب ایک سگریٹ پینے والے کو کوئی سگریٹ پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں شکریہ، میں سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو وہ ابھی تک خود کو ایک سگریٹ پینے والا ہی سمجھ رہا ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا، تو اس نے اپنی پہچان بدل لی ہے۔ جب آپ خود کو ایک کامیاب انسان کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے عمل خود بخود اس پہچان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے خواب دیکھو، بڑے مقاصد طے کرو، لیکن مقصد تو ہر اس انسان کا ہوتا ہے جو میدان میں اترتا ہے۔ جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، فتح۔ تو پھر فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فرق اس نظام میں ہوتا ہے جو جیتنے والے نے اپنے لیے بنایا ہوتا ہے۔ مقصد ہمیں سمت تو دکھاتا ہے، لیکن ترقی ہمیں وہ راستہ دیتی ہے جس پر ہم روز چلتے ہیں۔ اگر آپ صرف منزل پر نظر رکھیں گے اور اپنے پیروں تلے آنے والے پتھروں کو نہیں دیکھیں گے تو آپ گر جائیں گے۔ خوشی کو منزل کے حصول تک ملتوی نہ کریں، بلکہ ہر اس دن کی چھوٹی سی جیت میں سکون تلاش کریں جب آپ نے اپنی طے کردہ عادت کو پورا کیا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں ہر چھوٹا قدم آپ کی جیت کا جشن ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن زندگی وہیں کھڑی ہے جہاں کل تھی۔ اسے خاموش طاقت کا دور کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک برف کا ٹکڑا ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا ہو، درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہو، 25 سے 30 ڈگری تک پہنچ جائے، مگر برف نہیں پگھلتی۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدل رہا، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت 32 ڈگری کو چھوتا ہے، برف تیزی سے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وہ تبدیلی صرف اس 1 ڈگری کی وجہ سے ہوئی؟ ہرگز نہیں، وہ ان تمام درجوں کی محنت کا نتیجہ تھا جو پہلے سے ہو رہی تھی مگر نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ بس جمع ہوتی رہتی ہے، اور ایک دن اچانک دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ یہ انسان راتوں رات کیسے بدل گیا، جبکہ صرف آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ڈگری کا اضافہ کتنی تکلیف دہ خاموشی نے کیا گیا تھا۔
इंसान का दिमाग हमेशा उस रास्ते का इंतखाब करता है जहां उसे कम मेहनत करनी पड़े। हम फितरी तौर पर आराम पसंद हैं, इसलिए अगर हम किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हमें उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी होंगी, और अगर किसी अच्छी आदत को अपनाना है तो उसे इतना आसान बना दें कि उसे ना करना मुश्किल लगे। जेम्स क्लियर एक बहुत ही सादा मगर ताकतवर मशवरा देते हैं, 2 मिनट का असूल। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो उसे सिर्फ 2 मिनट दें ताकि आपका जहन उसे कबूल कर ले। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1 सफ़ा पढ़ें, अगर वर्जिश करनी है तो सिर्फ 5 मिनट करें। मकसद उस काम को ख़त्म करना नहीं बल्कि उसे शुरू करना है और इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। जब बुनियाद रखी जाती है तो इमारत बनाना आसान हो जाता है। हम जिस माहौल में रहते हैं वो खामोशी से हमारी शख्सियत को डिज़ाइन कर रहा होता है। अगर आपकी मेज़ पर हमेशा जंक फूड पड़ा रहेगा तो आपकी सेहत कभी बेहतर नहीं हो सकेगी, चाहे आप कितना ही इरादा क्यों ना कर लें। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अपने इर्द गिर्द की अशिया और लोगों को बदलना ज़रूरी है। उन लोगों की महफिल इख्तियार करें जिनके पास वो आदत हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, और जब आप एक ऐसे गुलशन में कदम रखते हैं जहां हर तरफ फूल हों तो आपके दामन से भी खुशबू आने लगती है। आदत सिर्फ काम नहीं है, ये आपके अपने लिए डाले गए वोट हैं। हर बार जब आप एक अच्छी आदत पर अमल करते हैं आप अपनी आने वाली बेहतर शख्सियत के हक में एक वोट डाल रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये वोट आपकी तकदीर का फैसला कर देते हैं। हमने ये समझ लिया है कि आदत महज काम नहीं बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा होती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम बदलने का इरादा कर लेते हैं तो वो कौन सी पोशीदा ताकतें हैं जो हमें दोबारा पुरानी राहों पर खींच ले जाती हैं। इंसान की जिबिलत हमेशा से सुकून और लज्जत की तलाश में रही है। हमारा दिमाग एक ऐसे प्रोग्राम पर चलता है जो हमें हर उस काम की तरफ राग़िब करता है जिसमें फौरी इनाम मिले। यही वजह है कि एक कड़वी दवा जो हमें ज़िंदगी दे सकती है हमें जहर लगती है, और एक मीठा जहर जो हमें बीमारी की तरफ ले जाता है हमें अजीज़ होता है। जेम्स क्लियर हमें यहाँ एक गहरा सबक सिखाते हैं जिसे वो फौरी इनाम का तज़ाद कहते हैं। हमारी ज़्यादातर बुरी आदत का नतीजा फौरी तौर पर बहुत खुशगवार होता है, लेकिन उनके दूर रस नताइज तबाहकुन होते हैं। इसके बरक्स अच्छी आदत का फौरी नतीजा थकन या बोरियत की सूरत में निकलता है, लेकिन उनका अंजाम एक खूबसूरत मुस्तकबिल होता है। ये एक नफ्सियाती जंग है जो हम हर रोज़ अपने अंदर लड़ते हैं। एक कामयाब और एक आम इंसान के दरमियान सिर्फ यही फ़र्क है कि कामयाब इंसान इस ताख़ीरी इनाम की कीमत को पहचान लेता है। वो जानता है कि आज की थकन कल के सुकून की ज़ामिन है। अक्सर हम अपनी नाकामी का जिम्मेदार हालात को ठहराते हैं, लेकिन कभी हमने इस क्यू या उस इशारे पर गौर किया है जो हमें किसी बुराई की तरफ उकसाता है। हमारी आंखें जो देखती हैं हमारा दिमाग उसी का मुतालबा करता है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने सिरहाने रखकर सोएंगे तो सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम आपका उसे उठाना होगा। यह आपकी मर्जी नहीं बल्कि आपके माहौल का पैदा करदा एक खुदकार अमल है। इसे बदलने के लिए हमें नज़रियाती डिज़ाइन का सहारा लेना होगा। अपनी अच्छी आदत के इशारों को वाज़ेह और नुमायां कर दें, और बुरी आदत के इशारों को इतना छुपा दें कि उन तक पहुंचना एक मुश्किल काम बन जाए। तसव्वुर करें एक ऐसे तालिब इल्म का जो पढ़ना तो चाहता है मगर कमरे में लगा टेलीविज़न उसे बार बार पुकारता है। अब यहाँ मुकाबला उसकी क़ुव्वत इरादी और उसकी नज़र के सामने मौजूद कशिश के दरमियान है। हम अक्सर अपनी क़ुव्वत इरादी पर बहुत भरोसा करते हैं, मगर सच तो ये है कि इंसानी इरादा बहुत कमज़ोर साबित होता है जब इसका मुकाबला एक पुरकशिश माहौल से हो। दानिशमंदी ये नहीं कि आप हर वक्त लालच से लड़ते रहें, बल्कि दानिशमंदी ये है कि आप अपने आप को उस माहौल से ही निकाल लें जहां लालच मौजूद हो। एक नज़्म ज़ब्त वाला इंसान वो नहीं होता जिसकी क़ुव्वत इरादी बहुत ज़्यादा हो, बल्कि वो होता है जिसने अपना माहौल इतना शफ़ाफ बनाया होता है कि उसे अपनी क़ुव्वत इरादी को बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ एक और अहम तसव्वुर उभर कर सामने आता है जिसे आदत का बोझ या हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। हम अक्सर नई आदत इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि इसे अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में कहाँ जगह दें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी नई आदत को किसी ऐसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दें जो आप पहले से ही बिला नागा करते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह की चाय पीने के बाद पुरानी आदत, मैं 5 मिनट के लिए अपनी डायरी लिखूंगा। नई आदत, ये छोटा सा जोड़ आपके दिमाग को एक नया रास्ता फराहम करता है। आपको याद नहीं रखना पड़ता कि नया काम कब करना है, बल्कि आपकी पुरानी आदत खुद ब खुद आपके लिए घंटी का काम करती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा काम भी इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं जैसे वो उनके लिए कोई खेल हो? इसकी वजह यह है कि उन्होंने मेहनत को लुत्फ में बदल दिया होता है। हम जब किसी काम को करना पड़ेगा कि बजाय करने का मौका मिला है कि नज़र से देखते हैं तो हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है। वर्जिश करना एक बोझ लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे इस नज़र से देखें कि ये आपको बुढ़ापे में दूसरों का मोहताज होने से बचाएगी तो वही बोझ एक इनाम बन जाता है। ये सब सिर्फ ज़ाविया निगाह का फ़र्क है।
जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करने के लिए हमें एक और सच्चाई का सामना करना होगा, सादगी की ताकत। हम अक्सर चीज़ों को इतना पेचीदा बना देते हैं कि हमारा दिमाग उनसे खौफजदा हो जाता है। याद रखिए, आपका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से है। अगर आप कल के मुकाबले में आज सिर्फ 1% बेहतर हैं तो आप दुरुस्त रास्ते पर हैं। लोग अक्सर बड़ी कामयाबियों के पीछे भागते हुए इन छोटे छोटे संगी मील को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो दरअसल बड़ी कामयाबी की बुनियाद होते हैं। एक अजीम मुसन्निफ एक दिन में किताब नहीं लिखता, वो हर रोज़ सिर्फ चंद अल्फाज लिखता है। एक अजीम सरमायाकार एक दिन में अमीर नहीं होता, वो बरसों तक अपनी छोटी छोटी बचत को जमा करता रहता है। ये जमा होने का अमल, जिसे कंपाउंडिंग कहा जाता है, कायनात का 8वां अजूबा है। ये पैसे में भी काम करता है और आपकी शख्सियत में भी। जब आप रोज़ाना मुताला करते हैं तो आपका इल्म सिर्फ जमा नहीं हो रहा होता, बल्कि वो आपस में जुड़कर एक नई बसीरत पैदा कर रहा होता है। जब आप रोज़ाना सच बोलते हैं तो आपका किरदार सिर्फ मजबूत नहीं होता, बल्कि वो लोगों के दिलों में आपके लिए एक ऐसा एतबार पैदा कर देता है जो मुश्किल वक्त में आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। लेकिन ये जादू तभी काम करता है जब इसमें तसल्ली हो। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट परफेक्शन या कामिलियत की तलाश है। हम चाहते हैं कि हर चीज़ मुकम्मल हो, हर कदम दुरुस्त हो। इसी चक्कर में हम अक्सर आगाज़ ही नहीं कर पाते। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि बेहतर होना कामिल होने से कहीं ज़्यादा अहम है। अगर आप आज 100% नहीं दे सकते तो कम से कम 10% ही दे दें, लेकिन इस सिलसिले को टूटने ना दे। एक दिन की सुस्ती आपको पीछे ले जा सकती है, लेकिन 2 दिन का नागा एक नई बुरी आदत की बुनियाद रख देता है। इसलिए खुद से अहद करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस तसल्ली को बरकरार रखेंगे। लेकिन क्या होगा जब हम गिर जाएंगे? क्या होगा जब हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे और हम अपनी इन प्यारी आदत को बरकरार नहीं रख पाएंगे? यही वो मकाम है जहां एक इंसान के हौसले का इम्तिहान होता है। गिरना ऐब नहीं, गिरे रहना ऐब है। जिंदगी आपको कई बार आजमाएगी, आपके रास्ते में ऐसी दीवारें खड़ी करेंगी जो आपको रोकना चाहेंगी। लेकिन याद रखिए, वही दीवारें दूसरों को भी रोक रही हैं। जो उन दीवारों को फलांगना सीख जाता है, वही तारीख रकम करता है। और इसीलिए जब जिंदगी आपको थका दे या आपका हौसला टूटने लगे, तो याद रखिएगा कि आपकी कद्र इसमें नहीं कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इसमें है कि आप कितनी बार दोबारा उठ खड़े हुए। जेम्स क्लियर हमें एक बहुत गहरी हकीकत की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि आदत का मकसद सिर्फ किसी चीज़ को हासिल करना नहीं है, बल्कि उस इंसान में ढल जाना है जो इन चीज़ों का हकदार है। हम अक्सर कामयाबी के पीछे भागते हैं, ये भूलकर कि कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे पकड़ा जा सके, बल्कि ये तो वो खुशबू है जो आपकी शख्सियत के फूल से खुद ब खुद महकने लगती है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब वो अपनी आदत के नताइज को अपनी आंखों से देख नहीं पाता। उसे लगता है कि वो एक अंधे कुएं में पत्थर फेंक रहा है, जिसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। लेकिन कुदरत का हिसाब किताब बहुत पक्का है। आपकी की हुई एक एक मिनट की मेहनत, आपका अपने गुस्से पर पाया जाने वाला एक एक लम्हे का काबू और आपकी वो हर छोटी सी कुर्बानी जो आपने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दी, वो सब कहीं ना कहीं दर्ज हो रही है। जब आप मुसलसल एक ही समत में काम करते रहते हैं तो आपकी आदत एक फ्री व्हील की तरह हो जाती हैं। शुरू में उसे घुमाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब ये रफ्तार पकड़ लेता है तो फिर इसकी अपनी ताकत उसे आगे बढ़ाती रहती है। हमें ये समझना होगा कि नज़्म-ओ-ज़ब्त, डिसिप्लिन कोई कैद नहीं है, बल्कि ये वो आज़ादी है जो आपको अपनी कमज़ोरियों की ग़ुलामी से निजात दिलाती है। एक वो इंसान है जो अपने जज्बात का ग़ुलाम है, जिसे जब भूख लगती है वो खा लेता है, जिसे जब सुस्ती आती है वो सो जाता है, और जिसे जब गुस्सा आता है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। और एक वो इंसान है जिसने अपनी आदत के ज़रिए अपने नफ्स पर पहरा बिठा दिया है। सच्ची आज़ादी उसी के पास है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो जानता है कि उसे कब हाँ कहनी है और कब ना। ये ना कहने की ताकत ही दरअसल एटमी आदत का वो जौहर है जो आपको हुजूम से अलग करके एक लीडर बना देता है। ज़िंदगी के इस आखिरी मरहले पर जेम्स क्लियर हमें एक बहुत अहम वार्निंग भी देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप एक आदत में माहिर हो जाते हैं तो एक नया ख़तरा जन्म लेता है, और वो है जमूद। जब कोई काम बहुत आसान हो जाता है तो हम उसे बग़ैर सोचे समझे करने लगते हैं, और यहीं से हमारी तरक्की रुक जाती है। हमें अपनी आदत को हर कुछ अरसे बाद दोबारा परखना चाहिए, उन्हें पॉलिश करना चाहिए और उनमें थोड़ा सा चैलेंज शामिल करना चाहिए। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। इसलिए खुद को थोड़ा सा मुश्किल में डालना, थोड़ा सा नया सीखना और अपनी सरहदों को फैलाते रहना ही असल ज़िंदगी है। आज की इस गुफ्तगू का हासिल ये है कि अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े बोझ उतार फेंकें और सिर्फ उन छोटे लम्हों पर तवज्जो दें जो अभी आपके हाथ में है। आपका मुस्तकबिल कहीं दूर नहीं छुपा हुआ, वो आपके आज के शेड्यूल में छुपा हुआ है। अपनी पहचान को एक ऐसे इंसान के तौर पर कबूल करें जो मुसलसल सीख रहा है, जो गिरकर उठना जानता है और जो बीज बोने की तकलीफ से नहीं घबराता, क्योंकि उसे फसल के पकने पर पूरा यकीन है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा कोई लॉटरी निकलना या अचानक शोहरत मिलना नहीं होगा,
बल्कि वो मौजज़ा उस दिन होगा जब आप आईने में देखकर मुस्कुराएंगे और खुद से कहेंगे कि मैंने खुद को बदल लिया है। ये कायनात उन लोगों के लिए राहें हमवार कर देती है जो अपने इरादों में सच्चे और अपनी मेहनत में मुस्तकिल मिजाज होते हैं। आपकी छोटी सी कोशिश, आपका वो 1% बदलाव शायद आज किसी को नजर ना आए, लेकिन आने वाले सालों में यही आपकी पहचान बनेगा। इस दुनिया को आपके बड़े बड़े दावों की ज़रूरत नहीं, उसे आपके छोटे छोटे नेक अमल और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। तो आज से ही, अभी से ही वो एक छोटा सा काम ढूंढे जो आपको अपनी मंजिल के 1 इंच करीब कर सकता हो। वो किताब का एक सफ़ा हो सकता है, वो एक गिलास पानी हो सकता है, या वो किसी के लिए कही गई एक नरम बात हो सकती है। बस शुरू कीजिए, क्योंकि सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, पहले कदम का मोहताज होता है। अल्लाह करे कि आपका ये सफ़र आसान हो, आपके कदमों में वो इस्तिकामत आए जो पहाड़ों को रेत बना देती है, और आपका दिल इस सुकून से भर जाए जो सिर्फ अपनी इस्लाह करने वालों को नसीब होता है। अपनी ज़िंदगी के बागबान खुद बने, फालतू झाड़ियों को काट फेंकें और वो पौधे लगाएं जिनके साये में कल आपकी आने वाली नस्लें सुकून पा सकें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे अफसोस में नहीं बल्कि तामीर में गुजारिए। उम्मीद है एटॉमिक हैबिट्स का ये खुलासा आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारी हिम्मत बढ़ाइए, और बोलती बुक के हमसफ़र बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप अपने ख्यालात का इजहार या हमसे रब्ता करने के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। हमें आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। बोलती बुक में आज का सफ़र यहीं तक था। मुझे इजाज़त दीजिए और इल्म की शमा जलाते रहिए, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है।